Hello students, we have our NCERT test book exercise numerical 5.3. So let's see what we have in this numerical. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? So dear student, let's see what we have. We have a magnet north south, and we know that the direction of magnetic moment is from north to south. So this is our bar magnet which is placed in a uniform magnetic field. So let this to be our uniform magnetic field. The condition is that the bar magnet is making angle 30 degree. The bar magnet is making angle 30 degree with the uniform magnetic field. So we have to calculate the magnetic moment of the magnet. So let's do the solution. Dear student, we have first of all what we are given, the parameter which are given: angle 30 degree, magnetic field 0.25 Tesla, and torque is equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joule. So dear student, we have torque is equal to mb sin theta. This is the torque experienced by a bar magnet when it is exists in a uniform magnetic field. So we have to calculate the magnetic moment m. So that is tau b sin theta. M is equal to, what is the value of torque? 4.5 into 10 to the power minus 2. Magnetic field का value 0.25 and sin 30. This become 4.5 into 10 to the power minus 2, 0.25 into half. This half will make, m is equal to, this half will make 4.5, 9. 2 की 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो it will become 9, 0.25. Okay, when we divide 9 by 0.25, we will get 36. So m is equal to, you can leave answer up to here or you can proceed one more step, 0.36. So what is the unit of m? Torque, joule, b Tesla, joule per Tesla. Okay. Otherwise, we have also other units of magnetic moment. So you can write them also. But here I will take the unit by this formula: torque or b, torque, joule, b Tesla. थीटा की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है तो जूल पर टेस्ला. So this is the required solution of this numerical. Quite easy. बस इस numerical का यही requirement है कि do you have the information of the torque experienced by a bar magnet in uniform magnetic field? क्या बच्चे को ये पता है कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी बार मैग्नेट कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है? टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, that can be easily done this numerical. Okay. Now we have example 5.4. Let's see what we have in this numerical.
A short bar magnet of magnetic moment is equal to 0.32 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla if the bar magnet is free to rotate in the plane of field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium. तो प्यारे बच्चों, एक तो इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस. और दूसरा आपसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है. तो लेट डू द न्यूमेरिकल. सबसे पहले व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो देखिए दिस इज टू बी आवर बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ और एम की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ. दिस इज आवर अगेन बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ और मैग्नेट मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ. चलिए, आवर बार मैग्नेट इज इन अ uniform magnetic field. This magnet is also in a uniform magnetic field. This is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. Dear student, stable equilibrium कब होता है, जब मैग्नेटिक मोमेंट m की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, पैरेलल. तो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द डायरेक्शन ऑफ m इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ b. क्लियर हो गया. और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ m इज एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल कह दीजिए या अपोजिट कह दीजिए, ठीक है ना, टू डायरेक्शन ऑफ बी. तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जब m और b की डायरेक्शन सेम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब m और b की डायरेक्शन 180 डिग्री पर होती है यानी एंटी पैरेलल, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हमसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस. तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल केस में होती है -mb और पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल केस में होती है mb. ओके. तो जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूले एकदम क्लियर होते हैं, रटे हुए होते हैं, तो उसके लिए तो न्यूमेरिकल करना कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है. ठीक है ना. तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये केवल आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि क्या आपको कांसेप्ट्स और फॉर्मूले याद हैं नहीं है, बाकी तो सब कैलकुलेशन ही है जो कोई भी कर सकता है. तो माइनस m की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0.3 0.23 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना गिवन है, 0.15. यही चीज बस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, 0.32 0.15. ओके. माइनस पॉइंट हटाएंगे तो 32 इंटू 15 और अपॉन में आ जाएगा 40 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट. सिमिलरली इधर 32 इंटू 15 अपॉन 40.
चलिए 32 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 480 माइनस 480 अपॉन, and here you also 480 upon 10,000. एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों, यू विल गेट माइनस का 0.048 एंड यहां यही चीज पॉजिटिव में 0.048. पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो यूनिट विल बी जूल, यूनिट विल बी जूल. तो this is the required solution of this numerical. What is a stable equilibrium, what is unstable equilibrium, ये आपको पता होना चाहिए. और दूसरी बात, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -mb और +mb, ये आपको याद होना चाहिए. बाकी इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं. In numerical 5.5, let's see what we have. A closely wound solenoid of 800 turn and area of cross section 2.5 into 10 to the power -4 meter square carry a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet. एक तो हमें प्यारे बच्चों ये बताना है कि जो सोलोनॉइड है वो कैसे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और दूसरा व्हाट इज इट एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और हमें दूसरा उसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट बताना है. तो देखिए लेट वी हैव, सबसे पहले सोलोनॉइड कैसे बनाते हैं. मान लीजिए ये हमारे पास एक इंसुलेटर, ठीक है, हमने एक इंसुलेटर लिया और उस इंसुलेटर के ऊपर वी हैव सम टर्न ऑफ मेटालिक वायर, और उस मेटालिक वायर में जब हम एक करंट फ्लो करते हैं, when we flow a certain current in that metallic wire, so we get as we see, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, जो करंट हो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देखिए ये ऐसे समथिंग लाइक दैट. मान लीजिए अगर ये सोलोनॉइड है तो पीछे से ऐसे आगे की ओर आ रहा है, ये देखिए समथिंग लाइक दैट. तो थंब किधर है, इस तरफ. क्लियर हो गया. चलिए तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आपको मालूम है, these are the magnetic line which generate in the solenoid. क्लियर हो गया. तो लेट डू द न्यूमेरिकल. सबसे पहले इसमें हमसे पूछा है कि इन विच सेंस द सोलोनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट. सोलोनॉइड कैसे एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो इसका हमने पूरा, अगर आप पिछले अपने थ्योरी के वीडियोस आपने देखे होंगे तो वहां हमने पूरा एक डेरिवेशन किया था, और वहां हमने बताया था कि एक सोलोनॉइड अपनी एक्सिस पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जितना प्रोड्यूस करता है एक बार मैग्नेट. तो इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलोनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट. तो इसमें हमने एक डेरिवेशन किया था कि सोलोनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. तो उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि एक सोलोनॉइड अपनी एक्सियल लाइन पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जितना एक बार मैग्नेट. तो देखिए इसका फर्स्ट आंसर देख लेते हैं. सिंस अ सोलोनॉइड प्रोड्यूस द सेम magnetic field on its axis as produced by a bar magnet. कोई भी सोलोनॉइड अपनी एक्सिस पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जितना एक बार मैग्नेट. ठीक है, दैट्स व्हाई
produced by a bar magnet. Hence, solenoid act like a bar magnet. ठीक है, ये हमने अपना डेरिवेशन भी किया था और यहाँ 1 मार्क्स में पूछा गया है तो हमने केवल जवाब थ्योरेटिकल दे दिया है. ओके, नाउ कम टू द सेकंड. हमसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है. तो प्यारे बच्चों, फॉर सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NIA. बार मैग्नेट के लिए क्या होता है, M का फॉर्मूला वो अलग होता है. ठीक है, और यहाँ सोलेनॉइड के लिए NIA. चलिए, तो N क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ टर्न विच आर 800. करंट कितना है 3 एम्पियर विच इज गिवन, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2.5 into 10 to the power -4. तो लेट डू 2.5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 8 into 3 into 25. पावर्स को बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले. तो ये पॉइंट है, ये दिस विल बिकम 10 की पावर -3. ओके, चलिए. नाउ 25 इस 8 को क्या बना देगा 200. 200 इस 3 को क्या बना देगा 600. वी विल गेट 600 into 10 की पावर -3. सो व्हाट वी गेट 6 into 10 की पावर -1 या 0.6. सो वी आर गेटिंग M और यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. So this is the required solution of the given numerical. So that's why जो सोलेनॉइड है वो बिहेव करती है बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह. ठीक है, why? Because they produce the same magnetic field at the axis. ठीक है, चलो. In exercise 5.6, what we have, if the solenoid in example 5.5 is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when its axis make angle 30 degree with the direction of applied field? Let's see what we have, dear student. We have a rigid support and by a certain support we hang up this solenoid of example 5.5. So this is the solenoid of example 5.5. okay, and this solenoid is making and an external magnetic field is applied on this solenoid. So the direction of M, this will be the direction of M of this solenoid magnetic moment, which make angle 30 degree by the external magnetic field. So the external magnetic field apply torque on this solenoid और हमसे पूछा है उसकी वैल्यू. तो let do. So in the previous question
we have calculated the value of m and that was 0.6. पिछले न्यूमेरिकल में हमने m का वैल्यू निकाला था और वो हमारा कितना आया था 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, एंड b की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 0.25 टेस्ला. ये हमें गिवन है. सो द टॉर्क act on solenoid by external magnetic field is tau is equal to mb sin theta. This is the formula of torque. So the m of solenoid is 0.6, magnetic field 0.25, and the angle is sin 30. So this will become 6 into 25 over 1000 into half. Okay, we have adjust the points, we get 1000. So this to make this 6 3 make 25 75 over 1000, that is 75 into 10 to the power minus 3, or we can make is one more convenient 10 to the power minus 2. So this is the torque act on the solenoid. Okay, in exercise 5.7 what we have, a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. तो दो बातें हमसे पूछी गई हैं. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field and opposite to the field. Also, what is the torque on magnet in case 1 and 2. So let's do the solution. One of the important and good question. ठीक है, तो करते हैं इसको. सबसे पहले हमसे क्या बोला गया बच्चों, दो केस दिए गए हमें. ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेट और नॉर्थ साउथ, और आपको मालूम है m की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है. ठीक है, और हमको इस मैग्नेट को घुमाना है, घुमाकर इस मैग्नेट को क्या कर देना है, नॉर्मल कर देना है. ठीक है, नॉर्थ साउथ, और m की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ. और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जहां ये एक्टिविटी होती है. देख लीजिए क्या किया गया है. एक मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड में था और कैसे था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी m b के क्या था, अलाइन पैरेलल. अब इसको इस तरह से घुमाया गया कि m की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये इसको घुमाया गया ऐसे करके, ऐसे घुमाया गया इस तरीके से कि जो m है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल हो जाए फील्ड की डायरेक्शन के लिए. दिस इज केस 1. ये हमारा है केस 1. ठीक है, केस 1. केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में हमारे पास वही मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, और m की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ. और इस मैग्नेट को
फिर से घुमाया गया m की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये एक्टिविटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड। हमसे कहा गया एक बार तो आप मैग्नेट को 90 डिग्री घुमाइए। कितना घुमाया गया? 90 डिग्री। मैग्नेट को 90 डिग्री घुमा के नॉर्मल कर दिया गया, और एक बार हमसे कहा गया मैग्नेट को घुमाइए कितना? 180 डिग्री। सेकंड केस में क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट हो जाए किसके? फील्ड के। देखिए m की डायरेक्शन b, इतना घुमाओ कि m की डायरेक्शन b के क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। तो क्या आपको केस 1 और केस 2 क्लियर हो गए? चलिए अब जरा कुछ बातें ध्यान दीजिए। जब भी m b के पैरेलल होता है, जब भी m की डायरेक्शन b के पैरेलल होती है, प्यारे बच्चों, उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mb। ये याद रखना, जब भी m की डायरेक्शन b के पैरेलल होती है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होता है mb माइनस के mb। कितना होता है? माइनस mb। ओके, चलिए, और जब m मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है mb, और जब m मैग्नेटिक मोमेंट के नॉर्मल होता है इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो पहली बात तो ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब मैग्नेट इस तरह से रखा हो कि m की डायरेक्शन b के पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb, m की डायरेक्शन b का अपोजिट है पोटेंशियल एनर्जी mb, और जब नॉर्मल है तो 0। ये तीनों बातें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। देखिए, जब भी आप किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा बार मैग्नेट ये चाहता है कि m की डायरेक्शन b के पैरेलल हो जाए, ये उसका नेचर होता है। और जैसे ही m b के पैरेलल हो जाता है वो रेस्ट पे आ जाता है। आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो मैग्नेट अपने आप को घुमाता है, अपने आप ही घुमाता है अपने आप को, वो किसी की हेल्प नहीं लेता, वो अपने आप को घुमाता है और अपने m को b के क्या पैरेलल कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं m की डायरेक्शन b के पैरेलल ना हो, बाकी चाहे कुछ भी हो, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। चाहे आप m को b के परपेंडिकुलर करें या अपोजिट करें, तो वर्क आपको करना पड़ेगा। तो वही आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम एक आंसर देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क। तो देखिए, इसको 90 डिग्री घुमाने में कितना वर्क होगा? तो वर्क इज इक्वल टू वर्क डन टू रोटेट। ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या पूरी लाइन? ठीक है, सीधा लिख देते हैं। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? फाइनल, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इनिशियल। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। चलिए, इज इक्वल टू, ये इनिशियल कंडीशन घुमा के 90 करा तो ये फाइनल कंडीशन। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ये इनिशियल कंडीशन था और ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 माइनस फॉर्मूले का इनिशियल कितना है? माइनस mb। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस mb। इधर देखिए, फाइनल कितना है? mb माइनस इनिशियल कितना है? माइनस mb। कितना हो जाएगा? 2 mb। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके,
इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.5, b की वैल्यू कितनी है 0.22। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 0.33 जूल, और यहां हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 0.22 इज इक्वल टू 0.66 जूल। तो कैलकुलेशन तो खैर कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा इसने पूछा है, ये था ए पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो देखिए यहां पे कितना एंगल है 90, साइन 90, m की वैल्यू, व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ m 1.5, d की वैल्यू 0.22 और साइन 91 0.33। ठीक है, वी गेट द सेम आंसर। और इधर देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन 180 इज इक्वल टू 0। 180 क्या होता है 0, क्योंकि आपने कितना घुमा दिया 180, तो साइन 180 कितना घुमाया 90। ठीक है, इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, तो इस कंडीशन में तो जो टॉर्क है, जो मैग्नेट है वो बी से कितना एंगल पर है 90 डिग्री, और जब आपने 80 डिग्री घुमा दिया अब कितना टॉर्क होगा, तो इस कंडीशन में तो टॉर्क क्या होगा, ये होगा विच इज 0। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा।